Jai Narayan. Good morning, dear student. So, in today's lecture, we are going to start with the topics, that is energy terms involved in formation of ionic bonds. What are the energy terms which are involved in the formation of ionic bond? So, first is we are going to talk about the metal. See, suppose M is a metal which is in gaseous state. So, from this metal, if we take out one electron, so that metal become M plus and it is in gaseous form. Here we can see that energy is absorbed. If energy is absorbed, that means ionization energy will be minimum. इस चीज़ को बेटा याद रखना है, जब ऐसा केस होगा कोई मेटल है वो गैसेस फॉर्म में, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तो मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, वो गैसेस फॉर्म में, तो एनर्जी अब्जॉर्ब्ड हो गई। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में जो आएगी वो हमारी बहुत ही कम होगी, दैट इज़ मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे केस में होगी। ओके, नाउ इन सेकंड केस वी आर गोइंग टू टेक नॉन मेटल. Taking the case of non-metal, suppose N is used for the non-metal and it is in gaseous form. So in non-metal we are going to, as they want to accept the electron, we are going to give one electron. So it becomes N minus and will be in gaseous form. In this case energy is released. In first case energy was absorbed, but in second case energy is released. So ionization energy here will be maximum. यहाँ पे देखिए बेटा मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है। थर्ड केस जो बेटा बनेगा हम लोग का, वो इन दोनों को अगर ऐड कर दें, मेटल प्लस नॉन मेटल को ऐड कर दें, तो जो केस बनेगा वो हमारा थर्ड केस होगा। मेटल एंड नॉन मेटल दोनों को ऐड करते हैं, देन मेटल प्लस नॉन मेटल। जब मेटल प्लस नॉन मेटल को हम दोनों ने ऐड किया तो क्या होगा, मेटल के लिए M था, पॉजिटिव चार्ज, was in gaseous form, then non metal negative charge, was in gaseous form. When they both combine they give us Mn, that is metal plus non metal, which is in solid form. So here see, energy is again released. मेटल नॉन मेटल मिक्स हुए, सॉलिड बन गया, एनर्जी रिलीज़ होगी क्योंकि बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्ड बनते समय कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ हुई उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, दैट एनर्जी इज़ नोन एज लैटिस एनर्जी। जो एनर्जी हमारी रिलीज़ हुई वो लैटिस एनर्जी कहलाई। क्लियर है? चलिए अब इस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ विच इज़ मोर आयनिक। कुछ हम नेम दे रहे हैं, आपको बताना कौन सा ज़्यादा आयनिक है। NaF, NaCl, NaBr and NaI. These are some elements, compounds. So we have to tell which is more ionic. आप देखिए यहाँ पे Na कॉमन, सबके पास Na है, बट डिफरेंस क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine and iodine. See, fluorine, chlorine, bromine and iodine.
these all are non-metals. So we know that non-metallic character decreases as we move down. That simply means फ्लोरीन हमारा ज़्यादा आयनिक होगा एज कंपेरिजन टू द आयोडीन. सो ट्रेंड हमारा होगा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. देखिए हमें बेटा कि आयनिक कौन सा सबसे ज़्यादा है, NaF है, देन NaCl, देन NaBr, देन Na. सो ये किसका एग्ज़ाम्पल हमने देख लिया. चलिए एक और हम लोग उसी पे चेक कर लेते हैं. Now second question, that is LiCl, NaCl, KCl, RbCl. अब आपको फिर से बताना कौन सा ज़्यादा आयनिक है. यहाँ पे देखिए अब Cl, 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 Cl सब में कॉमन है. चेंज क्या है, Li, Na, K एंड Rb. चलिए इसको हम लिख लेते हैं, Li, Na, K and Rb. See, this is following the trend in the group, and these all are lithium, sodium, potassium and rubidium. These all are metal. The metallic character increases as we move upward. That simply means सबसे ज़्यादा आयनिक जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, समझ रहे हैं आप. यहाँ पे ये ट्रेंड फॉलो होगा. ठीक है. Now coming to the next topic, that is properties of ionic compounds. What are the properties of ionic compound? So first property, ionic compound have very high melting point and boiling point. Very high melting and boiling point, because ionic bond are very stable, so they have very high melting as well as their boiling point. Coming to the second property, that is conductivity. Conductivity simply बेटा दे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में जब आयनिक कंपाउंड होते हैं तो वो बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं. बट इन मॉल्टेन स्टेट और इन एक्वस स्टेट, मॉल्टेन स्टेट में हो या एक्वस स्टेट में हो, तो ये बहुत ही गुड कंडक्टर हो जाते हैं. वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों. बैड कंडक्टर वहाँ थे, बट अगर ये मॉल्टन या एक्वस स्टेट में होंगे तो गुड कंडक्टर हो जाएंगे हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमारे हो गए प्रॉपर्टीज़ के. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ फिजिकल स्टेट. बेसिकली आयनिक कंपाउंड के फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है एज दे आर. NaCl का ही देख लीजिए या कोई भी आयनिक कंपाउंड देख लीजिए, बेसिकली ये सॉलिड होते हैं. कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म बेटा होता क्या है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर formula but different structural formula. मॉलिकुलर फार्मूला जो होगा सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा. तो ऐसे जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म. ये हम लोग बेटा पढ़े भी थे. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके organic compounds, they show the most isomerism.
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने देखा था मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला बने, बहुत सारे ऐसे आपके कंपाउंड्स होते हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं, वहाँ आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। तो नाउ कमिंग टू द फिफ्थ, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। दिस इज आइसोमेरिज्म एंड दिस इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म होता क्या एक्चुअल में बेटा, सेम लैटिस 3D स्ट्रक्चर। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिनका सेम लैटिस 3D स्ट्रक्चर होगा। ऐसे अगर कोई आपको कंपाउंड मिले जो इस तरीके के ट्रेंड को शो करें, सेम लैटिस 3D स्ट्रक्चर, वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाते हैं। अब देखिए इनमें क्या होगा। सबसे पहला सिमिलर फार्मूला होगा इनका, देन सेकंड सेम साइज, वो नियरली इक्वल होगी। साइज़ जो होंगे डिफरेंट आपके कंपाउंड्स के वो सेम होंगे और नियरली एकदम इक्वल होंगे। सपोज़ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैटायन एनायन है, इनका भी साइज़ बहुत ही क्लोज होगा तो वो आइसोमॉर्फिज्म को शो करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से ही हम लोग देख लेते हैं, दैट इज़ NaCl एंड MgCl। देखिए यहाँ पे बेटा Cl तो सेम है, Na है एंड Mg। Na का एटॉमिक नंबर 11 एंड Mg का 12। अब NaCl और MgCl क्या है, पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं Na के बाद Mg आता है, तो इनका जो साइज़ होगा वो भी तो सेम होगा, बहुत ही कम डिफरेंस होगा। डिफरेंस है बट बहुत कम, जिसके वजह से इनका 3D में जो लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा दोनों का, वो क्या होगा, सेम रहता है, एकदम सेम रिजेंबल करता है, इसके वजह से ये आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। सो यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। हाँ देखिए, अब जो हमारे आयनिक रिएक्शन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं वो नैनो सेकेंड या बहुत ही कम टाइम में 10⁻³ 10⁻⁻⁶ 10⁻⁹ सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं। दैट सिंपली मीन्स आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। देखिए एग्जांपल लेते हैं, सपोज NaCl प्लस AgNO3, ये दोनों आपस में रिएक्ट करें तो AgCl प्लस NaNO3 फॉर्मेशन हुआ। NaCl आपका एक्वस स्टेट में है, AgNO3 भी एक्वस स्टेट में है। AgCl जो बना ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म किया, एंड NaNO3 ये भी आपका एक्वस है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखनी, जब भी वाइट प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कोई भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन हुई है, इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन बताता है फास्ट रिएक्शन, और आयनिक रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती हैं। NaCl में देखिए Na प्लस था, Cl माइनस था, AgNO3 में Ag प्लस था एंड NO3 माइनस, बोथ आर आयनिक एंड आयंस में प्लस माइनस, इसलिए बहुत तेज रिएक्शन हुआ और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। देन सेकंड है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखिए बेटा बेसिकली क्या बताता है, आपको बताता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं आर मोस्ट सॉल्युबल, बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, किसमें, इन पोलर सॉल्वेंट्स में। किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। जैसे कि वाटर आपका है, ये क्या है, ये एक पोलर सॉल्वेंट है। क्यों, बिकॉज आयंस ऑफ द सॉलिड आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, बहुत ही तेज अट्रैक्शन का फोर्स होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं बहुत ही तेज आयनिक बॉन्ड को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए H2O है,
इसको अगर हम डिसोसिएट करें H प्लस और OH माइनस में ये होगा। तो ये एक पोलर सॉल्वेंट देखिए, प्लस भी H प्लस एंड OH माइनस भी। आयनिक कंपाउंड के पास जो प्लस एंड माइनस होता है तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, सॉलिबिलिटी अपने ही पोलर सॉल्वेंट में इनकी सॉलिबिलिटी आयनिक कंपाउंड की बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट एक टर्म जो हमने अभी यूज़ भी किया था, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है, देखिए एक एग्जांपल से समझ रहे हैं हम। Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na गैसियस फॉर्म में, Cl भी गैसियस फॉर्म में, जब ये दोनों कंबाइन हुए तो NaCl बना सॉलिड और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गए। गैस स्टेबल नहीं होती है बट सॉलिड स्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी हुई, स्टेबिलिटी अटेंड किया, एक लैटिस बना। ये लैटिस एक्चुअल में है क्या, देखिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस NaCl का जो फॉर्मेशन हुआ, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। गैस गैस एक साथ मिली गैसियस फॉर्म में और ये एक सॉलिड को फॉर्मेशन करी। इस प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई जिसको कि हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई वो एक लैटिस का फॉर्मेशन करी और उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी की अब डेफिनेशन देख लीजिए, या जो हम इसको बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of an ionic compound is formed from gaseous cation। देखिए गैसियस फॉर्म में एक कैटायन है पॉजिटिव चार्ज के साथ एंड एनायन, ये मैंने बताया था गैस के फॉर्म में एक कैटायन एनायन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम गैसियस कैटायन एंड एनायन। ये आपका हो गया लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को बेटा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, कांट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, कोई भी इसका डायरेक्ट मेथड नहीं है कैलकुलेट करने का लैटिस एनर्जी का, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड वी कैन कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी। और वो इनडायरेक्ट मेथड जिसके थ्रू हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो है दैट इज बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल के हेल्प से हम लैटिस एनर्जी की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और इस बॉर्न हेबर साइकिल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। सो थैंक यू। कंप्लीट योर नोट्स अप टिल हियर।